امی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ میں اور میرا بھائی ان کو اسپتال لے کر گئے تو پہلی بار ہم نے اسے دیکھا۔ اس کا نام سوریا تھا اور وہ نرسنگ کی ٹریننگ کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی۔ جس شعبے میں امی کا چیک اپ ہوتا تھا، نرسنگ ٹریننگ کی عمارت وہاں سے قریب ہی تھی۔ سوریا بہت خوبصورت تھی، 14ویں کا چاند کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اتنی حسین صورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ بھائی بھی اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کا حسن ایسا ہی تھا کہ نظر ایک بار ٹک جاتی تو پھر ہٹتی نہ تھی۔ اتفاق کے امی کا چیک اپ کرنے کو وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ آ گئی۔ فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ جو تفصیل ڈاکٹر بتاتی جاتی تھی وہ اس پر لکھتی جا رہی تھی۔ جب ہم اسپتال سے نکل رہے تھے وہ ہم کو دوسری بار راہداری میں مل گئی۔ میں نے کہا کہ امی کے بارے اگر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہو تو بتا دیں کہ کس نمبر پر ٹرائی کریں۔ بولی اب میرا نمبر لے لیں، جو بات کرنی ہو میں کرا دوں گی، اور جس دن آپ کو اسپتال آنا ہو مجھے مطلع کر دیں تو آپ انتظار کی زحمت سے بچ جائیں گی۔ سوریا کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ جب ہم اسپتال جاتے وہ ہماری کافی معاونت کرتی۔ یوں اس کی ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی اور اب واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ 8 سال کی تھی جب امی ابو میں اختلاف ہوا۔ میرے والد صاحب نے والدہ کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ جب سے اب تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو ان سے لے لیا تھا۔ وہ خرچہ بھی نہ دیتے تھے۔ بڑی مشکلات میں ماں نے FA تک تعلیم دلوائی اور نرسنگ ٹریننگ کے لیے میں یہاں آ گئی۔ امی ہماری ہمدرد واقع ہوئی تھیں۔ انہوں نے سوریا کو بیٹی بنا لیا۔ یوں اس کا کبھی کبھار آنا جانا رہتا۔ پھر وہ لاہور سے اپنے شہر سیالکوٹ چلی گئی۔ کچھ عرصہ تک اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اچانک اس کا فون آیا کہ وہ اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی ہے کیونکہ اس کی ملازمت ہو گئی ہے۔ وہ اسپتال میں کوارٹر حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ فی الحال انہوں نے کرایہ پر مکان لیا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی عادات کی مالک بھی تھی۔ ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھی۔ امی سے پیار کا اظہار کرتی تو میری والدہ بھی اسے یاد کرتی رہتی، اور جب وہ کبھی کئی دنوں تک نہ آتی تو مجھے کہتی، رمشا سر کو فون تو کرو، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نہیں آئے؟ عید پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ اجوڑا لے کر رکھتی تھی۔ غرض ماں جیسے بیٹی کو چاہتی ہے ویسے ہی سوریا کا خیال رکھتی تھی۔ میرے علاوہ اشر بھائی کے پاس بھی اس کا نمبر تھا۔ جب میں مصروف ہوتی امی بھائی سے سوریا کا نمبر ملوا لیتی اور باتیں کرتی۔ امی کو اپنی صحت کے بارے تشویش تھی اور سوریا ان کو اس لحاظ سے گائیڈ کرتی رہتی تھی۔ اتفاق سے اشر بھائی کا آفس بھی اس اسپتال کے ہی نزدیک تھا جہاں اسے نوکری ملی تھی۔ وہ اس سے ملنے 1-2 بار اسپتال گئے۔ نہ جانے کب فون پر دونوں میں دوستی ہو گئی کہ بھائی ہم سے بتائے بغیر اس کے گھر بھی آنے جانے لگے۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ 2 سال تک چلا لیکن انہوں نے ہم کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ وہ ویسے ہی ہمارے گھر کبھی کبھی آتی، امی سے اور مجھ سے مل کر چلی جاتی۔ ایک دن مجھے کچھ شک سا ہوا کہ بھائی چپکے کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ذرا ٹوہ لگائی تو انہوں نے بتا دیا کہ سوریا فون کرتی ہے، کیا اسے پسند کر لیا ہے بھائی؟ تو وہ بولے ہاں ایسا ہی سمجھ لو، کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرنی ہے۔ یہ بھی اچھی ہے، تم اس کے بارے سوچو پھر امی کو منا لیں گے۔ میں بھائی کی باتیں سن کر کچھ گمسم ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ میرا بھائی ایسا ویسا نوجوان نہیں۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ بھائی کی پسند میرے والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی امی ابو آپ کی شادی اپنوں میں کرانا چاہتے ہیں، بلکہ امی تو چاچا حیدر کے گھر بات بھی کر چکی ہیں۔ وہ سوریا سے شادی کے لیے کبھی نہ مانیں گی۔ میری بات بھی صحیح تھی۔ وہ چپ ہو گئے، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ بہرحال میں نے ان کے کان میں یہ بات تو ڈال دی تھی کہ بھائی جان اب ذرا سنبھل کر چلیے گا۔ والدہ کو میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ بات بڑھنے سے پہلے بھائی کو تھام لے۔ مجھے ڈر تھا کہ ابو کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گے اور عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ امی نے بات اپنے تک نہ رکھی اور باتوں باتوں میں والد کے گوش گزار کر دی، کیونکہ وہ باتیں اپنے شریک زندگی سے نہ چھپاتی تھیں۔ وہ یک دم بگڑ گئے، بولے یہ اشر کو کیا ہو گیا ہے؟
पहले तो कभी उसने जबान न खोली थी। वालिदा ने समझाया कि नौजवान लड़का है, अब उसे कुछ न कहिएगा, मैं खुद माना लूंगी। बात शायद समझाने की हद से आगे बढ़ चुकी थी। जब वालिदा ने तंबीह की, अशर भाई उखड़ गए। कहने लगे, जिंदगी मैंने गुजारनी है, अब लोगों ने नहीं। जान लीजिए कि अगर मुझ पर जबरदस्ती अपना फैसला थोपने की कोशिश की गई तो मैं घर से चला जाऊंगा। वालिदा इस धमकी से डर गईं। अशर उनका एक ही बेटा था। ताहम मैंने उम्मी को तसल्ली दी और भाई को भी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो हो अच्छा हो। अब सुरैया ने हमारे घर आना बंद कर दिया था। शायद कि भाई ने उसे मना कर दिया था। हम दोनों बहनों ने अशर भाई से कहा कि आप हमको सुरैया के घर ले चलें, हम देखें तो सही कि वो कैसे लोग हैं। अशर हमको सुरैया के घर ले गए। इसकी बहन और वालदा बहुत खुश होकर मिले, हमारी खातिर मुदारात करने लगे। उनको ख्याल हुआ कि शायद हमने सुरैया को पसंद कर लिया है और अपनी भाभी बनाने का इरादा है। हमको भी ये अच्छी लगी थी। हम बहनों ने उम्मी को मिना लिया कि फी अलहाल आप अशर भाई को तन्हा न छोड़ें बल्कि इन लोगों के घर आना जाना रखें। न जाने ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है, ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाए। अम्मी ने भी बेटे की उन लोगों में गहरी दिलचस्पी को समझ लिया। कोई माँ अपनी औलाद की खुशियों को रेजा रेजा होते देखना नहीं चाहती, ऐसे में जबकि इसका बेटा इकलौता हो। अबू को मनाना अब उम्मी का काम था। हम तो अपने भाई के साथ थे। सच कहूं तो पहली नजर में ही मुझे सुरैया भा गई थी। अम्मी ने एक दो बार सुरैया, उसकी वालिदा और बहन को घर भी मदऊ किया। वो शायद चाहती हों कि वालिद इनको एक नजर देख परख ले तो बात आगे करे, लेकिन वालिद साहिब हैदर चाचा के घर ही भाई का रिश्ता करना चाहते थे। वो इस बात से रंजीदा हो गए कि मेरी बीवी और बच्चियां भी अपने भाई की हमनवा हो गई हैं। हम तो भाई की खातिर ऐसा कर रही थीं क्योंकि मुझे मालूम था अब अशर मानने वाले नहीं। वो हर इतवार को खाना सुरैया के घर खाते थे। हम को ना बताते, मगर मैंने हालात से बाखबर रहने के लिए सुरैया को इस कदर एतमाद में ले लिया कि वो मुझे अक्सर बातें फोन पर बताया करती थी। 2 साल गुजर चुके थे और अब सुरैया की बहन मेरे भाई से इसरार करती थी कि अपनी वालिदा से कहो रिश्ता लेकर आए। अम्मी कब तक सुरैया को बिठाए रखेंगी? जब भी अब कोई अच्छा रिश्ता आया वो मजीद इंतजार न करेंगी। ये हकीकत थी। वो इतनी हुसैन थी कि अच्छे घर के नौजवान इससे शादी पर आमादा हो सकते थे। मुमकिन था कि कुछ डॉक्टर लड़कों के रिश्ते भी आए हों। अब जब इन ख्वातीन ने भाई से इसरार किया, उन्होंने उम्मी से कहा कि अब जल्द अज जल्द उनके घर मेरा रिश्ता लेने जाएं क्योंकि मैं बरसर रोजगार हो चुका हूं। आखिर अब देर क्यों कर रही हैं जबकि लड़की भी पसंद कर ली है। अम्मी ने एक बार फिर वालिद साहिब से बात की, वो बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि मैं भाई को भी छोड़ दूं और अपना मसलक भी छोड़ दूं। इन लोगों का अकीदा हमसे अलग है। मैं कभी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं हो सकता। वालिद के गुस्से से हम सब डरते थे। अम्मी भी सहम कर रह गईं और हम बेटियां तो उनके आगे दम ना मार सकती थीं। अम्मी ने बेटे को साफ बता दिया कि अशर तुम्हारे अब्बान लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने को हरगिज तैयार नहीं है, आगे की तुम खुद सोच लो। ये बात अशर ने मजबूर होकर सुरैया की मां को बता दी। रिश्ता लेने मेरे वालिदैन नहीं आएंगे। मैंने इनको मनाने की काफी कोशिश की है और नाकाम रहा हूं। सुरैया की मां ने भाई से कहा, अशर हमारे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। हमने तुम्हारी शराफत और मोहब्बत देखते हुए ये फैसला किया है कि तुम्हारे घर वाले शादी में शामिल हों या ना हों, तुम बेशक अपने दोस्तों को ले आओ। मैं निकाह कर दूंगी, लेकिन रुखसती तभी करूंगी जब तुम्हारे घर वाले सुरैया को अपने साथ रखने पर राजी होंगे। इस तरह मुझे कम अज कम ये तो इत्मीनान हो जाएगा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता पक्का है, तभी दूसरी के लिए तग वो दो करूंगी। सोच, अगर आज मैं मर जाऊं फिर मेरे बाद इन दोनों का कौन होगा। सुरैया की मां की बातों का भाई के दिल पर असर हुआ। वो अपने 2 दोस्तों के साथ उनके घर गए और सुरैया की मां ने बेटी का निकाह करा दिया। भाई ने कहा कि जब तक उम्मी अब्बर राजी नहीं होते उसे अपने पास रहने दीजिए। मैं इसको अकेले घर में कहां और कैसे रखूंगा।
अशर भाई ने सुरैया को अपना लिया और आन औरतों का सहारा बन गए, लेकिन हमको उन्होंने कानों कान खबर ना होने दी, बल्कि शादी के बाद भी रात को घर आ जाते। उन्होंने वालिद साहिब के डर से अपने मामूलात में तब्दीली न आने दी। अशर भाई को उन्हीं दिनों कंपनी की तरफ से सऊदी अरबिया जाने का वीज़ा मिल गया। वो बहुत खुश हुए कि जाकर बीवी को भी बाद में वहां बिलवा लूंगा और जुदाई की फसील खत्म हो जाएगी। अब भाई वहां से सुरैया से राब्ता रखते थे और बाकायदा ड्राफ्ट भिजवाते थे। हर माह माकूल रकम सुरैया के घर वालों को अशर की कमाई से मिलने लगी। रकम वो सुरैया की वालिदा के नाम बैंक में भिजवाते कि यही उनकी हिदायत थी। वहां जाकर अशर भाई को अंदाजा हुआ कि यहां बीवी को बुलवाना और साथ रखना एक निहायत दुश्वार अमर है। 3 साल बाद भाई छठी पर वतन आए। जब सास के घर गए पता चला सुरैया घर पर नहीं है। इसकी मां ने बताया कि इसकी खाला इसे ले गई है और वो सियालकोट में है, क्योंकि यहां इसके बहुत रिश्ते आते हैं और वो किसी को बता नहीं सकती उनकी बेटी शादीशुदा है। सिर्फ और सिर्फ इस खौफ की वजह से कि अशर के वालिद को इल्म ना हो जाए और वो यहां आकर कोई हंगामा ना कर दे। अशर को ये बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, अब तो मैं आ गया हूं, अब आप मेरी बीवी को बुलवा ले। मैं खुद इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। कोई उसे कबूल करे ना करे, मैं इतना कमा चुका हूं कि अलग भी रह सकता हूं। अब मैं किसी बात की परवाह ना करूंगा। सुरैया की वालिदा ने आखिर एक रोज कह दिया कि तलाक दे दो, या फिर समझ लो कि हमारी बेटी से तुम्हारी शादी हुई ही ना थी। मेरी बेटी का बहुत दौलतमंद घराने से रिश्ता आया है। वो खूब धूमधाम से शादी करेंगे और सारी दुनिया के सामने इसे इज्जत से बयां कर ले जाएंगे। तुम 3 साल बाहर रहे हो, वैसे भी वो अब तुम्हारी पाबंद नहीं है। तुमने कौन सा शादी को रजिस्टर कराया था? निकाहनामे का परत तक अपने पास नहीं रखा, घर वालों के डर से। मैंने वो सारे परत फाड़ दिए हैं, तुम दावा भी नहीं कर सकते। तुम ही झूठे बनोगे कि भला कोई इतने बरस भी बीवी को छुपाता है और निकाह को खुफिया रखता है। शादी तो वो होती है जिसमें लड़के वाले भी शरीक होते हैं। सारी दुनिया को पता होता है। ये सुनकर भाई अशर बोले, खाला जी निकाह कोई मजाक तो नहीं? मैं कोर्ट में दावा करूंगा। हाँ हाँ जाओ, शौक से जाओ, जुग हंसाई कराओ। वो बुज़दिल शख्स जो बीवी को घर नहीं ले जा सकता, वो कोर्ट किया जाएगा। भाई ने मुझे बताया कि रमशा मेरे साथ इस चालाक और मस्कीन बुढ़िया ने हाथ किया है। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा, भाई ये वालिद की तरफ से तुमको सबक है। जल्द तुम पर आन लोगों की असलियत खिल गई है। मेरी मानो तवाब, उनका पीछा हरगिज मत करो। अपनी इज्जत को मजीद घाटे में मत डालो। जैसे खामोशी से निकाह किया था वैसे ही तलाक भी दे दो, अगर तुम इस बंधन को शादी कहते हो। बहरहाल जो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती, तुम क्यों उनको जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहते हो? वो कहने लगा कि एक बार सुरैया से तो बात कर लूं, वो क्या कहती है। साफ जाहिर है बेटी भी वही है जो मां है। अब भी तुम्हारा राब्ता नंबर उसके पास है, कहीं से भी फोन पर राब्ता कर सकती है। वो एक मुलाजमत पेशा और नर्स है, इतनी तो बेबस ना होगी कि तुमको एक फोन ना कर सके। अशर भाई परेशान तो बहुत थे, लेकिन मेरी बात उनकी समझ में आ गई। सुरैया ने 2 माह की छठी ली थी। मैंने अस्पताल जाकर उसकी एक सहेली से पता किया और नंबर लेकर फोन किया तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बोली कि मैं रमशा या किसी अशर को नहीं जानती। आप लोगों को अगर इज्जत प्यारी है तो दोबारा फोन मत कीजिएगा। हमको सुरैया जैसी धोखेबाज प्यारी ना थी। हमको तो अपने वालिदैन और उनकी इज्जत प्यारी थी, लिहाजा हम बहनों के समझाने से अशर ने दिल पर सब्र की भारी सिल रख दी कि मोहब्बत में लाख हर बात जायज, सही इज्जत की नीलामी का सौदा जायज नहीं था। उन्होंने अपने तौर पर फिर भी सुरैया से राब्ता की कोशिश जरूर की थी। जब 100% यकीन हो गया कि यह खानवादा ही दुरुस्त नहीं है तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वालिदैन के कहने पर चचा हैदर की बेटी से शादी कर ली। बेशक हमारी भाभी बहुत खूबसूरत नहीं है, बल्कि कबूल सूरत है, लेकिन ऐसी बेवफाक बेमरवत भी नहीं है जैसी कि सुरैया थी। खुदा ऐसी हुसैन लड़कियों से शरीफ खानदान के नौजवानों को बचाए जो दौलत ही को सब कुछ समझती हैं।